We studied development of male gametophyte, development of female gametophyte, and today we will study about the pollination. What is pollination? Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grain from the anther to stigma. So it means from the male reproductive organ to female reproductive organ. As you can see in the diagram, this is the female reproductive organ. You already know this. This is the copel and this is the stamen. Okay, so there are basically two kinds of pollination. One is a self pollination and other one is a cross pollination. तो सेल्फ का मतलब होता है कि खुद में पॉलिनेट होना. जब सेम फ्लावर के एंथर से pollen सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, then this process is known as a cell pollination. As you can see in this diagram, the pollen grains are transferred from this anther to the same stigma. So this is the cell pollination. But in a cross pollination, what happens? The pollen grain is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower. This is called the cross pollination. So basically this cross pollination, and one more thing I want to tell you, what about bisexual and unisexual condition. देखो एक तो ये भी condition होती है bisexual condition and unisexual condition. What is bisexual? When male and female reproductive organs are present in the same flower, then that kind of flower is known as a bisexual. But when male and female sex organ are present in separate flower, then they are known as a unisexual flower. उनको फिर क्या बोलते हैं हम? Unisexual flower बोलते हैं. And sometimes अब इस unisexual में भी further दो types होते हैं. One is a unisexual में further क्या दो types होते हैं? One is a monoecious and another one is a dioecious. मोनोशियस में क्या होता है? जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होता है. मेल फ्लावर मीन्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल फ्लावर मीन्स जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. तो व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, देन दिस इज नोन एज अ मोनोशियस कंडीशन. ऑलवेज रिमेंबर, देन दैट इज नोन एज अ मोनोशियस कंडीशन व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट ऑन द same plant. But when male and female flower are present on the separate plant, then that is known as a dioecious condition. So here are the different types of pollination. Self pollination and cross pollination. Cross pollination is also known as a xenogamy. And in a self pollination, there are two different kinds: autogamy and geitonogamy. Autogamy क्या है? Autogamy, when pollen grain are transferred from anther to stigma of the same flower, जब एक ही फूल के अंदर ये pollination होता है, then it is known as a autogamy. But when two different flowers of the same plant, इसको ध्यान से समझो, जिटोनोगेमी एंड ऑटोगेमी में बस माइनर सा डिफरेंस है. देखो, इसे हमें जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. देखो, कोई भी फ्लावर अगर एक पौधे पे प्रेजेंट है तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सेम होगा. दैट विल बी जेनेटिकली सिमिलर. तो अगर सेम ही प्लांट के फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वो एक तरीके से ऑटोगेमी ही, वो एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बिकॉज देयर इज जेनेटिक सिमिलरिटी. वो एक ही पौधे से बिलोंग करें, दे बिलोंग टू सेम ब्रांच. फ्लावर अलग है बट दे आर genetically similar. So this will be called, this will also be called as a cross pollination, but उसे दूसरा नाम दिया गया है जिटोनोगेमी. तो what is जिटोनोगेमी? When pollination occurs between the different flower of the same plant, this is called a जिटोनोगेमी. And what is the autogamy? When pollination occurs between the anther to stigma of the same flower, then that is called the autogamy. Now, cross-pollination is also known as genogamy, and as I told you earlier, the cross-pollination is the transfer of pollen grain from anther of one plant
to the stigma of another plant. इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे. Okay, so what are the agents that favor cross pollination? Basically, there are several abiotic and biotic factors that helps in cross pollination. बहुत सारे abiotic और biotic factors होते हैं जो cross pollination में help करते हैं. तो what are the abiotic factors? Like wind pollination, water pollination, है ना. विंड पॉलिनेशन जो विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है. तो जब विंड से जो पॉलिनेशन होता है, मींस विंड से पॉलिनेशन का मतलब क्या है, हवा से उड़ के पॉलन ग्रेन जब एंथर से इस दूसरे स्टिग्मा पे गिरता है, दिस इज कॉल्ड अ wind pollination. Means simply transfer of the pollen grain from the anther to stigma, and the means of the transfer may be anything. It may be air, it may be water, it may be any biotic agent like insect, bat, snail, bird, and even human beings too. So if as pollination occurs with the help of wind, it is called the anemophily, and when it occurs with the help of water, it is called the hydrophily. And what about the biotic factors? In a biotic factor, if it occurs with the help of insect, it is called entomophily. When it occurs with the help of bat, it is called chiropterophily. When it occurs with the help of snails, it is called malacophily. When by birds, ornithophily. And when by ant, then it is called myrmecophily. So these are the different kinds of pollination you have to remember. And if this question is asked in exam, so you have to make the flow chart. अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आप फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे, then you will get a good marks. Now, so what are the adaptations of self pollination? Means ऐसे क्या factors हैं जो self pollination को फेवर करते हैं. तो पहला फैक्टर है बाइसेक्सुअल फ्लावर. जब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट में प्रेजेंट है. बाइसेक्सुअल का मतलब यही हुआ ना, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर. तो अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है तो ऑब्वियस है कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा. क्लिस्टोगेमी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता, क्लोज्ड बड होता है. ठीक है. तो क्लिस्टोगेमी में क्योंकि वो फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे फ्लावर क्लोज्ड है. तो ऑब्वियस सी बात है कि उस फ्लावर के अंदर जो एंथर है, पॉलिन ग्रेन है, वही स्टिग्मा को पॉलिनेट करेंगे. बाहर से कोई पॉलिन ग्रेन आने का वहां पे चांस ही नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इट इज कॉल्ड अ क्लिस्टोगेमी. एंड व्हाट अबाउट होमोगेमी? होमोगेमी मींस आइडेंटिकल गेमो. मींस जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मेच्योर हो जाए, दिस इज कॉल्ड होमोगेमी. होमोगेमी, गेमी मींस एक तरीके से मैरिज होता है. गेमी का लिटरल मीनिंग, होमो मींस आइडेंटिकल, मींस इफ दे मेच्योर एट द सेम टाइम, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोगेमी. तो जब एंथर और स्टिग्मा एक साथ ही मेच्योर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो दीज आर द adaptations for a self pollination. Now what are the adaptations for the cross pollination? Cross pollinations के क्या adaptation होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं. ऐसे बहुत से चांस है कि किसी और प्लांट से पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर दे. सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है कि वो आपस में हाइब्रिड बनाने में इनकम्पैटिबल है. मेल एंड फीमेल फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन है, बट दे आर नॉट कंपैटिबल. वहां पे कंपैटिबिलिटी इश्यू है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड द सेल्फ स्टेरिलिटी. व्हाट इज अ डाइकोगेमी? इन अ डाइकोगेमी, the male and female reproductive organ mature at a different time. जैसे अगर वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर होगा, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन होके भी क्या होगा, जब पहले ही एंथर मेच्योर हो गया, जब पहले एंथर मैच्योर हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रोटेंड्री. यू कैन नोट इट. व्हेन एंथर मैच्योर्स बिफोर स्टिग्मा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज अ प्रोटेंड्री. बट व्हेन स्टिग्मा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स बिफोर द एंथर, देन इट इज कॉल्ड
protogamy and protandry and protogamy. And hetero means different, style. कभी कभी क्या होता है कि किसी प्लांट्स में स्टाइल डिफरेंट लेंथ के होते हैं. लेट मी शो यू दिस डायग्राम. ये पर्पल डायग्राम देखिए. ये जिस प्लांट का फ्लावर है इसमें लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टाइल, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं. एक लॉन्ग स्टाइल होता है एंड एक शॉर्ट स्टाइल. तो ये लॉन्ग स्टाइल फ्लावर है और एंथर देखो कहाँ पे है, एंथर नीचे की ओर है. तो ऑब्वियस है कि जब ये एंथर इतना नीचे है तो ये स्टिग्मा पे पहुंचने के इसके चांसेस कम हो जाते हैं. एंड सेकेंड वन इज अ शॉर्ट स्टाइल फ्लावर. शॉर्ट स्टाइल फ्लावर में क्या होता है कि यहाँ पे स्टाइल छोटा है और एंथर बड़ा है. तो मीन्स इनका जो पोजीशन है, ये जो इनका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काफी डिस्टेंस में है. तो दे आर नॉट compatible. This is called heterostyly. And hercogamy क्या है? hercogamy भी बिल्कुल इस heterostyly जैसा ही समझो. hercogamy में क्या है कि जो इस एंथर और स्टिग्मा के बीच में काफी डिस्टेंस होता है. इट इज सिमिलर टू दिस. यहाँ देखो, इसे अप्रोच hercogamy बोलते हैं. यहाँ पे एंथर छोटे हैं और स्टिग्मा काफी हाइट पे है. और रिवर्स hercogamy क्या है? एंथर बड़े हैं और स्टिग्मा छोटा है. hercogamy एब्सेंस देखो, ये आइडियल सिचुएशन है. यहाँ पे hercogamy नहीं है, एंथर और स्टिग्मा सेम पोजीशन पे है. तो देयर इज द चांसेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन. इसके बाद सेकेंड थिंग इज जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि व्हेन विंड से होता है तो एंटोमोफाइली, एंड जब वाटर से होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइली. तो हाइड्रोफाइली का क्या अडेप्टेशन होता है? हाइड्रोफाइली मींस व्हेन पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो ऑब्वियस है कि ये हाइड्रोफाइली किसी भी एक्वेटिक प्लांट में है. तो ये वैली सिनेरिया का एग्जाम्पल है. तो इसमें हाइड्रोफाइली में भी दो कंडीशंस होती है. वन इज अ हाइपोहाइड्रोफाइली एंड अनदर वन इज अ ईपीहाइड्रोफाइली. हाइपोहाइड्रोफाइली मींस जब पॉलिनेशन वाटर लेवल के नीचे होगा, देन इट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफाइली. हाइपो मींस बिलो एंड ईपी मींस ऊपर. ईपीहाइड्रोफाइली में क्या है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर लेवल के ऊपर हो रहा है. तो इसमें जो एडेप्टेशन है हाइड्रोफाइली का, क्या एडेप्टेशन है? देखो, हमेशा जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ऑब्वियस है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक तभी पहुंचेगा जब वो फ्लोट कर पाएगा. तो जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें बायोटिक कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्लोट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, so that they can float on the water surface and they can reach to the female plant. तो ये देखो एग्जांपल दिखा रहा है, ये स्टेमिनेट फ्लावर है और ये पॉलन ग्रेन्स फ्लोट करते हुए जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू पॉलिनेट पिस्टिलेट फ्लावर. और पिस्टिलेट फ्लावर कैसा है? ये टॉप पे है, ऊपर की ओर फ्लोट कर रहा है. तो इस तरीके से ये इनको पॉलिनेट करते हैं. एंड एंटोमोफाइली. तो एंटोमोफाइली में क्या है कि व्हेन पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, देन इट इज कॉल्ड द एंटोमोफाइली. एंटोमोफाइली के क्या अडेप्टेशंस हैं? इंसेक्ट फ्लावर्स के पास किस लिए जाते हैं? टू टेक नेक्टर, टू टेक सम न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, अपने न्यूट्रिशन के लिए जाते हैं. लेकिन जब वो न्यूट्रिशन के लिए जाते हैं या फिर फ्लावर बहुत सेंटेड हो, अट्रैक्टिव हो, तो मोस्टली वो नेक्टर लेने के लिए जाते हैं और या फिर फॉर अदर न्यूट्रिटिव पर्पस. और जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो पॉलन ग्रेन को अपने साथ भी ले जाते हैं. सो दिस special adaptation is called the entomophily. Next thing is the chiropterophily. जैसे बैट्स है, बैट कुछ स्पेसिफिक फ्लावर होते हैं, जैसे एडेटोडा वेसिका. ये फ्लावर किसका है? एडेटोडा वेसिका का है. तो वो मोस्टली उसको पॉलिनेट करने के लिए ये है कि ये बैट इसको पॉलिनेट करता है. तो व्हेन दिस पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बैट, देन इट इज नोन एज अ chiropterophily. Now there are certain special adaptations for the pollination. जैसे pollination in a salvia.
सॉल्विया में लीवर मैकेनिज्म है। लीवर मैकेनिज्म क्या है, देखो सबसे पहले ये इसका कोरोला आप देखिए, फ्लावर देखिए कैसा इसका कोरोला होता है। दिस इज द बाई-लिप्ड करोला। बाई-लिप्ड करोला, ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है ना। बाई-लिप्ड कैसा करोला है, लगता है बाई-लिप्ड है ना। बाई-लिप्ड करोला है, ये ऊपर की ओर पेटल है, नीचे की ओर है। और इसका जो फिलामेंट होता है वो काफी बड़ा होता है। और एंथर क्या है, एंथर इज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द फिलामेंट। तो ये इस तरीके से बिल्कुल लीवर मैकेनिज्म बना देता है। और स्टाइल कहाँ है, ये देखिए ये स्टाइल है एंड स्टिग्मा है यहाँ पे, ये देखो ये एंथर हो गया एंड दिस इज द स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब जब फ्लावर इस प्लांट पे आता है तो वो मोस्टली यहाँ पे सिट करता है। देखो यहाँ पे हनी भी है और ये बीच में यहाँ पे सिट कर रहा है। और जब ये सिट करता है तो ये आप देखो ये एंथर है ना, एंथर इसके बॉडी से टच हो जाता है और ये पॉलिन ग्रेन को क्या करता है, इसके ऊपर शेड कर देता है, फैला देता है, डस्टेड हो जाता है। इट बिकम डस्टेड विद द pollen grain, ठीक है। तो ये बिकॉज इट बिकम डस्टेड विद द pollen grain। अब फिर यही सेम बी जब दूसरे प्लांट को पॉलिनेट करने जाता है तो फिर क्या होता है कि जब उसकी बॉडी से स्टिग्मा टच होता है तो वो क्या करता है, pollen grain को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में होता है, बाइलिप्ड कोरोला के बीच में। और ये इसका एंथर है और ये इसका स्टाइल है। सो दिस इज वेरी आई मीन सिंपल मेथड। तो ये जो इसमें स्पेशल एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कि यहाँ पे लीवर मैकेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ पॉलिनेशन इन अ फिग। तो फिग में एक्चुअली दो तरीके के फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। वन इज अ एडिबल फ्रूट एंड वन इज अ नॉन एडिबल फ्रूट। तो जो इसका फीमेल फ्लावर होता है वो अपनी जो उसका एग होता है अपने लार्वे को और एग को कहाँ पे प्रेजर्व करता है, इनसाइड द नॉन एडिबल फिग। दो तरीके के होते हैं, वन इज एडिबल एंड अनदर वन इज अ नॉन एडिबल। तो जो नॉन एडिबल में होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये नॉन एडिबल कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे ये नॉन एडिबल में होते हैं लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ये इंसेक्ट, ये जो इसके पॉलिनेटर है इनको फिग वेस्ट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी ये गलती से एडिबल फिग में चले जाते हैं, ठीक है। एडिबल फिग में जाते हैं और अगर उनका पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वो उससे डस्टेड हो जाते हैं। फिर ये उससे निकल के फिर किसी और एडिबल फिग में फिर एंटर कर जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे जाके उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देते हैं। बट इनका जो मेन पर्पस होता है वो इनका यही होता है कि वो अपनी एग को ले करने के लिए जाते हैं नॉन एडिबल में। बट वो एडिबल फिग में एज अ कंफ्यूजन एंटर करते हैं बट वहां पे जाके वो अपनी पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज द पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन फिग। सो इट वाज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चंस?